With ASP.NET, you can have dynamic data on your browser, but to do that, for each and every operation, you have to go to the server. जिसका मतलब है कि आपको ज़्यादा प्रोसेसिंग, ज़्यादा CPUs and ultimately ज़्यादा memory required है. To overcome this issue, companies like Android, Angular and React, they came in front and they started writing the code in JavaScript and writing frameworks in JavaScript, and people started using those frameworks. So because you can write code in JavaScript and push your code onto the browser, that means for each and every request you don't have to go to the server and you can do your processing on the browser. But even with these languages, there are many issues like authentication. You don't want to write your authentication code, and these languages are also very slow. Like, I'm also a React developer, and I know how much time it takes to run a React application when you are accessing it for the first time. So to overcome this issue, Blazor come and kicks in. So we will see how Blazor does this job, and for this, let me share my screen. So we are here for some Blazor insights today, and this is your host Wasim Ahmed Mughal. First of all, we have the table of content here. We will talk about what is Blazor and what Blazor is not. Then we will see the hosting models we have in Blazor, and after that we will have a little demo of layouts and components, and after that we will create some applications and see how it works. So Blazor. Blazor is a single page application development framework, and it is open source. Microsoft is using it extensively inside Microsoft. So अगर इसको कहें कि .NET in browser तो ये गलत नहीं होगा, because this is capable of executing views on the client instead of having to execute Razor views on the server and then present HTML to the browser. Here you can see the structure of Blazor, and the specific diagram you are watching right now is basically from Blazor server. There are two different hosting models we will see in the next slide. तो ये एक सर्वर की एग्जांपल है जिसमें आपके पास क्लाइंट साइड के पास .NET का कोड और उसके कंपोनेंट्स होते हैं रेजर के, जबकि आपके पास सर्वर साइड पे सारा कोड होता है .NET का. सॉरी, आई वाज गोइंग ऑपोजिट साइड. सर्वर्स पे आपके पास सारा .NET का कोड होता है और क्लाइंट साइड पे आपके पास DOM ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एंड द कम्युनिकेशन गोज विद सिग्नल आर कनेक्शन. सो इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे हाउ सर्वर एंड वेब असेंबलीज वर्क. बट उससे पहले कि वेब ब्लेजर क्या नहीं है, आप में से अगर किसी ने सिल्वरलाइट में काम किया हुआ है तो मे बी यू कैन कंफ्यूज इट विद सिल्वरलाइट, बिकॉज सिल्वरलाइट माइक्रोसॉफ्ट की एक ऐसी कोशिश थी जिसमें वो इन ब्राउजर एप्लीकेशंस को रन करना चाहते थे. सो द ड्रॉबैक वाज कि सिल्वरलाइट required a browser plugin in order to run on the client, जिसकी वजह से वो बहुत सारे OS को सपोर्ट नहीं करता था और बहुत सारे ब्राउजर्स को सपोर्ट नहीं करता था. So Blazor does not require any kind of plugin installed on the client in order to execute inside a browser. और इसको आप सर्वर साइड पे भी चला सकते हैं और इसको आप एज अ वेब असेंबली को यूज करते हुए क्लाइंट साइड पे भी चला सकते हैं. And since WebAssembly is a web standard, so it is supported on all major browsers and all OS. ये इसका होस्टिंग मॉडल्स हैं दो डिफरेंट किस्म के. सबसे पहले हमारे पास आता है Blazor server, which is on the right side, and it was released first in September 2019. ये वो होस्टिंग मॉडल है जिसका भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास ब्राउज़र के ऊपर स्क्रिप्ट और HTML आपके पास सिंपल होती है, और आपकी प्रोसेसिंग मेजर जितनी भी प्रोसेसिंग बिजनेस लॉजिक होती है वो सारी की सारी आपके पास सर्वर के ऊपर प्रोसेस होती है, जो कि ASP.NET कोर का रन टाइम फ्रेमवर्क वहाँ पे अवेलेबल होता है. अब इनकी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उसके लिए ब्लेजर जो है वो सिग्नल आर का कनेक्शन क्रिएट करता है और उसको यूटिलाइज करता है. जबकि अगर आप वेब असेंबली की बात करें, वेब असेंबली ज़्यादातर आप लोगों को पता ही होगा. वेब असेंबली एक ऐसी जिस आप हाई लेवल लैंग्वेजेस को बेसिकली सिंपल बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको फिर यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स
understand this binary code and supports WebAssembly. So .NET ASP.NET ने इसके ऊपर .NET का रन टाइम लिखा, जिसके बॉटम पे WebAssembly, and then by utilizing this WebAssembly .NET मेक श्योर के सारी की सारी जो आपकी वेबसाइट है वो क्लाइंट साइड पे काम करे। तो ये उसका स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास जितना भी सी शार्प का ये हाई लेवल कोड होता है वो सारा का सारा कन्वर्ट होके बाइनरी फॉर्मेटेड इंस्ट्रक्शंस में वो आपके पास होस्ट मशीन के ऊपर डाउनलोड हो जाता है, इंक्लूडिंग दैट .NET रन टाइम। और उसके लिए आपकी फिर कोई भी सर्वर कॉल्स जनरेट नहीं होती, जिससे वो काफ़ी क्विक होता है। हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे थोड़े से। पहले हम सर्वर के प्रॉस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप प्रॉस साइड पे देखें तो इट इज़ फुली कंपैटिबल विद एनी .NET लाइब्रेरी, और .NET का कोई भी टूल इसको सपोर्ट करता है। सिंटेक्स ऑलमोस्ट ब्लेजर क्लाइंट साइड, दैट इज WebAssembly, एंड द सर्वर ऑलमोस्ट सेम है। देयर इज नो मेजर डिफरेंस इन दैट। इसमें हेवी लिफ्टिंग, जितना भी आपका हेवी प्रोसेसिंग होती है वो सारी की सारी सर्वर साइड पे हो जाती है, और डाउनलोड साइड सिग्निफिकेंटली स्मॉलर होता है इसमें। जबकि आप इसमें ऑलमोस्ट हर किस्म की जो थिन क्लाइंट्स हैं आपके, वो सपोर्ट करते हैं आपके। अगर इसकी कॉन्स की बात करें तो ऑब्वियसली फॉर एवरी थिंग यू हैव टू यूज सिग्नल आर कनेक्शन, एंड देयर कम्स विद सम नेटवर्क लेटेंसी एज वेल, जिसकी वजह से प्रोसेसेस डिले होते हैं। फिर इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि हर प्रोसेस के लिए आप जो है वो सर्वर को हिट कर रहे होते हैं। देन इसके लिए .NET रिक्वायर्ड होता है आपकी सर्वर मशीन के ऊपर, और ऑब्वियसली देयर इज सम लिमिटेशंस ऑन सिग्नल आर कनेक्शंस टू सर्वर। आप एक लिमिटेड कनेक्शंस उसके बना के उनको हैंडल कर सकते हैं। वेब असेंबली के प्रोस की बात करें तो वेब असेंबली में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी, जैसे मैंने कहा कि .NET डायरेक्टली इन ब्राउज़र, तो आपकी सारी की सारी कोडिंग जो है सर्वर साइड की और क्लाइंट साइड की और बिजनेस लॉजिक ईच एंड एवरीथिंग बाइनरी इंस्ट्रक्शंस में आपके पास क्लाइंट साइड पे डाउनलोड हो जाता है, और सब कुछ वहाँ पे रन होता है, आपके सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से ये सर्वर साइड के मुकाबले में बहुत फास्ट है। इट कैन ऑल्सो वर्क ऑफलाइन, जैसे आपने प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस का सुना होगा, जो कि आपके पास अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो दे कैन वर्क एज एन ऑफलाइन एप्लीकेशन एज वेल। सो आप इसको यूटिलाइज करके एक प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन को भी बना सकते हैं। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो सबसे बड़ा मसला जो हमें रिएक्ट वगैरह में आता है स्लोनेस का, तो इस इधर भी थोड़ा सा वहाँ पे वो लैग है, क्योंकि आपको होल्ड रन टाइम डाउनलोड करना पड़ता है, needs to be downloaded, then again debugging options आपके पास लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि आपका जितना भी कोड होता है वो सारा बाइनरी इंस्ट्रक्शंस में होता है। सो जब आप डिबगिंग में जाएंगे तो ऑब्वियसली इट कॉस्ट यू समथिंग। लेआउट्स बेसिकली आपके पास इसका जो स्ट्रक्चर है ब्लेजर में लेआउट्स का, वो इट इज़ सिमिलर टू वेब फॉर्म्स, जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट यूज़ होता था मास्टर एंड देन चाइल्ड। तो यही कॉन्सेप्ट आपका MVC पे भी चल रहा है, और ये कॉन्सेप्ट आपका बाकी लैंग्वेजेस भी फॉलो करती हैं कंपोनेंट बेस्ड। तो आपके पास एक जो मेजर लेआउट होता है वो सारा का सारा आपके पास एक मास्टर लेआउट में होता है, जिसको आप जिसके अंदर आप नेस्टिंग भी करते हैं, कर सकते हैं। सिंस वी आर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम टुडे, हम सारा जो है ब्लेजर पढ़ नहीं सकते, तो हमने इसको ज़्यादा डिटेल में मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी करनी है। तो ऑब्वियसली अगर आप डिटेल में जाएं तो इसमें नेस्टिंग भी हो सकती है। इसमें अगर आपके पास डिफरेंट एरियाज हैं एप्लीकेशन के अंदर, लाइक यू हैव अ सेपरेट एरिया फॉर एडमिन एंड इट हैज़ अ सेपरेट लेआउट, तो आप उसमें सेपरेट मास्टर लेआउट्स भी बना सकते हैं, फिर उसके चाइल्ड लेआउट्स भी बना सकते हैं। सो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम एक छोटे से डेमो की तरफ चलते हैं, और दो एप्लीकेशन हम सिंपल सिंपल सी बना लेते हैं, वेब असेंबली की भी और सर्वर की भी, और से पहले आपको साइड बाय साइड दिखाएंगे कि हाउ दे आर सिमिलर। सो लेट्स गो टू अदर मशीन। Okay, so this is Visual Studio 2009 preview, and I'm going to create a simple new project. यहाँ पे आप अगर आप ब्लेजर एप्लीकेशन या ब्लेजर ऐप सर्च करें तो आपके पास दोनों एप्लीकेशंस आ जाएंगी। इस
अगर आपके पास कोई डिफरेंट वर्जन है तो आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ब्लेजर ऐप लिखा है और जब आप उसे सिलेक्ट करें तो उसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों, आइदर यू वांट टू गो टू द वेब असेंबली टाइप एंड सर्वर टाइप। तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर ले। हमने दोनों बनानी है तो हम एक पहले बना लेते हैं वेब असेंबली। इसको आप यहाँ पे दिस इज द एब्रीविएशन फॉर वेब असेंबली एप्लीकेशंस। अगर आप कहीं भी WSM लिखें तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं दिस इज रिलेटेड टू वेब असेंबली। मेरे पास लेटेस्ट 5 इंस्टॉल है, 6 अभी तक इंस्टॉल नहीं किया मैंने, तो हम 5 को लेके चलते हैं। एंड वी डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर इट फॉर HTTPS। ओके, ये हमारे पास एक एप्लीकेशन वेब असेंबली बन गई है। अगर आप इसको सिंपली रन कर रहे हैं विदाउट चेकिंग एनीथिंग फ्रॉम द कोड, तो ये आपके सामने कोई ऐसी एप्लीकेशन आती है जिसमें डिफरेंट मेन्यू आइटम्स एडिट हैं ऑलरेडी और एक सिंपल सा लेआउट बना हुआ है। हम एक साथ सर्वर एप्लीकेशन बना लेते हैं ताकि सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इसको हम नाम दे देते हैं ब्लेजर सर्वर। All the same target framework and same authentication. Okay, let's run this one. इसको एक ही ब्राउजर में लेते हैं ताकि साथ साथ देख लें। ओके, बेसिकली टेम्पलेट सेम है। अगर इसमें सॉरी लेट्स स्टॉप माय अदर वन। Okay, it is not allowing me to run two different Blazor applications simultaneously. तो हम एक एक करके देख लेते हैं। कोई आपने देख तो लिया होगा, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है, काउंटर है, फेच डेटा है। इसमें डिफरेंस अगर आप देखें तो आपके पास जब भी आप फेच डेटा पे आएंगे, इन वैल्यूज को हम चेक कर लेते हैं। 1762, तो जब भी आप मूव करके फेच डेटा पे आएंगे तो ये आपको डिफरेंट वैल्यूज दिखाएगा क्योंकि ये सर्वर कॉल कर रहा है और सर्वर कॉल में एक रैंडम नंबर्स जनरेट कर रहे हैं इनके अगेंस्ट। जबकि अगर आप मैं आपको रन करके दिखाऊंगा वेब असेंबली का, तो उसमें यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि वो एक स्टैटिक डाटा डाउनलोड उसने कर लिया, वो उसी के ऊपर रन कर रहा है उसको। क्योंकि मोस्टली हम वेब असेंबली वाली एप्लीकेशंस को प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं जो कि ऑफलाइन चल सकें, तो उसमें जितना भी डाटा होता है वो आप डाउनलोड कर लेते हैं। ऑब्वियसली उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी नीड्स के मुताबिक अगर आप डाटा चेंज करना चाहते हैं। दैट विल नॉट बी स्टैटिक एट ऑल, लेकिन उसमें फिर आप ऑब्वियसली कोड करना पड़ेगा आपको। तो अगर हम इसके फोल्डर स्ट्रक्चर का देखें, ये आपके पास लेफ्ट साइड पर जितना भी है ये आपके पास वेब असेंबली का कोड स्ट्रक्चर है एंड राइट साइड पर आपके पास सर्वर साइड का कोड स्ट्रक्चर है। इसमें कोई मेजर डिफरेंस एज सच नहीं है। आपके पास सेम पेजेस हैं, शेयर्ड में हैं,
और प्रोग्राम डॉट सी एस एस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, जस्ट यहाँ पे एक स्टार्टअप का डिफरेंस है, अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, ये फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात करें तो आपके पास जितने भी पेजेस होते हैं, जितने भी व्यूज या कंपोनेंट्स आप कह लें, वो सारे के सारे आपके पास पेजेस में होते हैं। यहाँ पे आप फोल्डर विद इन फोल्डर एंड डिफरेंट एरियाज सब कुछ जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। शेयर्ड में आपके पास एक मेन लेआउट आ जाता है, हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। From now on we will be following WebAssembly code। हम दोनों को एक साथ तो उसमें कुछ कोडिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम एक एप्लीकेशन को लेके चलते हैं। You can try the other one। ओके, मेन लेआउट वो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा था, मास्टर पेज वाला कॉन्सेप्ट। और अगर आपने कोई भी मास्टर पेज का लेआउट बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेआउट कंपोनेंट बेस क्लास से डिसाइड करना पड़ेगा। ये आपका मेन मास्टर पेज होता है। इसके साथ डिसाइड करने के बाद ये स्ट्रक्चर में आप कहीं भी जो भी बॉडी पैरामीटर यूज करेंगे, या इसको इस तरह कह लें कि एक प्रॉपर्टी है ये बेसिकली। तो जहाँ पे भी बॉडी प्रॉपर्टी यूज करेंगे वहाँ पे आपका जो बेसिक कंपोनेंट आपने कहीं भी बनाया होगा वो वाला यहाँ पे आपका लोड हो जाएगा डॉम में। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पेजेस जैसे बने हुए हैं, काउंटर, फेच, इंडेक्स। ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट आपका क्रिएट कैसे होता है और वेब असेंबली और सर्वर में डिफरेंस क्या है और कैसे आप दोनों को क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, तो हम एक पे अगर काम कर लें तो आप दूसरा को खुद बना के दे सकते हैं। देयर इज नो मेजर डिफरेंस इन देम। ओके, अगर हम एग्जिस्टिंग पेजेस को देखें तो आपके पास एक ये आपको ऐड पेज नज़र आ रहा होगा। ये आप बेसिकली राउटिंग के लिए यूज़ करते हैं। हम राउटिंग की एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे जिसमें आपको ऑब्वियसली डीप डाइव तो नहीं कर सकते हम राउटिंग में, लेकिन हल्का सा ओवरव्यू के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल इंप्लीमेंट कर लेते हैं और उसमें आपको राउटिंग का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। फिर नीचे आप जितनी भी HTML है वो सारी लिख सकते हैं। एंड देयर इज वन मोर थिंग यू कैन डू विद रेजर पेजेस, दिस। सो यहाँ पे आप जो है सी शार्प को विद इन रेजर पेजेस आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और यही वजह शोहरत है ब्लेजर की, आप कह सकते हैं, जिसमें आप HTML और सी शार्प को कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। और दिस इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर समवन लाइक मी जिसको जावास्क्रिप्ट में काम करने में इतना मजा नहीं आता। हम एक सिंपल सा पेज बनाते हैं और पहले हम राउटिंग वाली साइड को देख लेते हैं कि हम अगर सिंपल से राउट्स हमने लिखने हो तो ऐड पेज को यूज़ करके आप कैसे राउट क्रिएट कर सकते हैं। राउटिंग भी लेआउट की तरह और कंपोनेंट्स की तरह एक वास्ट टॉपिक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं राउटिंग में, राउटिंग के लिए ब्लेजर के अंदर, लेकिन हम ऑब्वियसली सारे को गो थ्रू नहीं कर सकते, तो हमने जो है टोटल वो बहुत बेसिक रखा है। तो मैं आपको बेसिक एक पेज बना के दिखा देता हूँ और उसमें हम सिंपल सा कोई राउट क्रिएट कर देते हैं। तो पेजेस में आप जाके ऐड करके कोई भी रेजर कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस रेजर कंपोनेंट को हम एक सिंपल सा लिस्ट टाइप क्रिएट कर लेते हैं ऑर्डर्स की, और उसके क्लिक पे जो है हम नेविगेट करके दिखा देते हैं। So our page is orders। ये आपका बेस स्ट्रक्चर इसने बना दिया है। अब पेज आपने बना दिया तो ऑब्वियसली इसको आपको नेविगेशन में भी ऐड करना पड़ेगा। जहां मैंने आपको शेयर्ड पेजेस दिखाए थे, मेन लेआउट पड़ा हुआ है, उसके साथ नैव मेन्यू भी आपका पड़ा हुआ है जो आप अपने भी क्रिएट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आप कोई ना कोई टेम्पलेट यूज करेंगे क्योंकि 90% वेबसाइट जो हैं इंटरनेट पे वो कोई ना कोई टेम्पलेट यूज कर रही होती हैं। तो आप उसका नेविगेशन मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। हम एसी को एक लिंक कॉपी कर लेते हैं इसमें से। ओके, इसको और इसका नाम देते हैं। अब ये मुझे नेविगेशन लिंक में मुझे
पूछ रहा है कि मैंने कहाँ पे इसको नेविगेट करना है, तो हम इसका नाम लिखते हैं सिंपल ऑर्डर्स। लेकिन ये इस लिंक से आइडेंटिफाई कैसे करेगा इसको? इसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए यहाँ पे हमें ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि इस पेज का राउट, इस रेजर पेज का राउट बेसिकली क्या है। तो whenever the browser calls slash orders, it will navigate directly to this one. ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमारे पास सिंपल एलाइज होंगी और रेफरेंस के लिए एंकर टैग्स। स्लैश इसकी हम कुछ कॉपीज बना लेते हैं फॉर मल्टीपल ऑर्डर्स। पहले इसको रन करके इसका इफेक्ट देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट कैरी ऑन करेंगे हम। अच्छा, ये हमने पेज बनाया था, नेविगेशन में ऐड किया था ऑर्डर्स के नाम से, और आप यूआरएल में देखें तो स्लैश ऑर्डर्स, ये एग्जैक्टली वही है जो यहाँ पे हमने ऐड किया पेज टॉप के ऊपर। तो ये जब भी नेविगेट इस पे करेगा ये हमें इस पेज पे ले आएगा। इसमें सिंपल सी एक लिस्ट थी और इन लिस्ट के ऊपर लिंक्स लगे हुए। फॉर द टाइम को क्लिक करेंगे तो इसको ये नेविगेशन यूआरएल नहीं मिलेगा, तो ये आपको ये एक पेज शो कर देगा। ये पेज ये आपको कहाँ से शो कर रहा है? हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक एरर पेज होता है ऐप डॉट रेजर। जितना भी आपका HTML DOM एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें आके रेंडर होते हैं मेन लेआउट से ऑनवर्ड। अगर यहाँ पे इसको राउट को कुछ भी नहीं मिलता तो ये सिंपली आपको ये एक सिंपल सा मैसेज शो करवा देता है जिसको आप मॉडिफाई करके अपने एरर पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। सो ये हमें सिंपली यहाँ पे लेके आ गया क्योंकि इसको राउट में कहीं भी, राउट असेंबली में कहीं भी वो वाला यूआरएल नहीं मिला। तो हम इसको यूआरएल कैसे डिफाइन करें? हम यहाँ पे एक और यूआरएल डिफाइन करते हैं जिसमें हम इसको कहते हैं कि जब भी स्लैश ऑर्डर स्लैश एक पैरामीटर ऐड कर देते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल ऑर्डर नंबर, और इसकी टाइप डिफाइन कर देते हैं कि इंटीजर। जब भी पैरामीटर में ये आए तो ये कैप्चर करके इस यूआरएल पे स्विच कर जाए। लेकिन हम कैसे देखें कि इसका इफेक्ट हो रहा है? एक तो हमें यूआरएल में नज़र आ जाएगा, अदरवाइज दूसरा ये अगर हमें ऑर्डर नंबर भी कहीं से पैरामीटर से शो करवा दे तो वो भी हमारे लिए अच्छा होगा। तो हम इसको कहीं प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी ताकि, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली जब वो आएगा तो उसके पास कोई पैरामीटर होगा नहीं, तो हमें एक नल चेक लगा लेना चाहिए यहाँ पे जो हम ऐसे कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे आप जो है सी शार्प को या सिंपल कंडीशंस वैलिडेशंस विद इन HTML एलिमेंट्स आप इसको यूज कर सकते हैं। as value, ओके, तो हम अगर हमारे पास वैल्यू नहीं है तो सिंपली डू नथिंग एल्स।
अच्छा, अब ये मुझे एरर दे रहा है ऑर्डर नंबर पे, क्योंकि मैं डायरेक्ट ऐसे पैरामीटर कभी भी यूज नहीं कर सकता। अ, ये वो जगह है जहाँ पे हमारा ये पोर्शन काम आता है, जहाँ पे हम HTML के पैरामीटर्स को मतलब URL के पैरामीटर्स को कैप्चर कर सकते हैं, या C# से रिलेटेड जो भी काम है वो आप इस ब्लॉक में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर एक इंटीजर बना लें, ऑब्वियसली इन आर टाइप, तो अच्छा ये हमें इसको बताना पड़ेगा कि दिस इज कमिंग फ्रॉम द पैरामीटर, जो कि आप इस तरह बता सकते हैं। तो हमारा जो है वो एरर ख़त्म हो गया। अब ये काम किस तरह कर रहा है, जब भी आपके पास ये यूरल हिट होगा विच इज़ /order/ कोई भी एक इंटीजर नंबर, तो ये उस इंटीजर नंबर को ऑर्डर नंबर में कैप्चर कर लेगा और इसको फिर यहाँ पे ये प्रिंट करवाने के लिए कैपेबल है, रन टाइम पर रनिंग इसकी करवा सकता है। तो हम इसको हमें बार बार इसको प्रोजेक्ट को रन करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप इसे जान छुड़ाना चाहते हैं तो हमारे पास एक लेटेस्ट फीचर है .NET 6 में, जो इंशाल्लाह हम कभी ना कभी बात करेंगे उसके ऊपर, हॉट रीलोड के नाम से। सो दैट इज़ वेरी कूल। आपको बार बार प्रोजेक्ट रन नहीं करना पड़ता, आप सिंपली जो है उसको हिट करते हैं और वो आपका कोड रिफ्लेक्ट कर देता है। अभी आपको रन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जितना भी कोड है वो हम वेब असेंबली वाला प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो जितना भी कोड है वो उसको बाइनरी इंस्ट्रक्शंस में लाइक फॉर्मेट करता है, उसके बाद जो है कंपाइल करने के बाद ब्राउज़र पे डाउनलोड करता है। तो इसलिए आप जब भी कुछ नया ऐड करेंगे तो आपको वो रिकम्पाइलेशन करनी पड़ेगी। अब हम ऑर्डर्स में आए, तो सबसे पहले तो हमारे पास नन, क्योंकि यूआरएल में कोई भी नंबर नहीं है। अब इन यूआरएल्स को अगर आप हिट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर नंबर चेंज हो रहे हैं, राइट, एंड देयर इज नो रीलोडिंग ऑन द वेबसाइट, वेब पेज, सब कुछ जो है इंटरेक्टिव है, राइट। अगर हम इस पे बात करें कि हम विद इन पेज हमने नेविगेशन कर दिया या सेम यूआरएल सेम पेज में यूआरएल डिफाइन किए हैं, तो हम किसी और पेज पे भी जा सकते हैं। लाइक मैं अगर इसी href में काउंटर का लिंक दे दूं विच इज /counter, तो ये उस पर भी नेविगेट करेगा। ऑर्डर नंबर 3 पे /counter, एंड /counter पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और इसके मेथड्स चल रहे हैं। अच्छा, अब ये मेथड्स कैसे बना सकते हैं आप, किस तरह इसके काम कर सकते हैं, इसके लिए हम छोटी सी कोई एप्लीकेशन बना लेते हैं, जस्ट लाइक सिंपल कैलकुलेटर, जिसमें हम दो नंबर्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस करवा के तो उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए हम इसी को यूटिलाइज कर सकते हैं, हमें कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये एक और रेजर पेज बन गया, जिसको हमने ऑब्वियसली नेविगेशन में अगर मैं शो करना चाहता हूँ तो नया मेन्यू में ऐड कर लेते हैं इसको, just like we have added orders. That is calculate. अच्छा, अब यहाँ पे हमें सिंपली इसके लिए क्या चाहिए कि एक div स्ट्रक्चर, आप इसमें रेजर सिंटैक्स भी यूज कर सकते हैं और सिंपल HTML जैसे अभी तक मैं यूज कर रहा हूँ उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल HTML क्रिएट करते हैं और उसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल बटन्स होंगे और उन बटन्स के साथ कुछ div कुछ नंबर्स होंगे जो हम इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक इनपुट फील्ड्स। तो
आप इसमें बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर सकते हैं सिंपली, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड ऑलरेडी। ये हमारा टाइटल के लिए हो गया। और यहाँ हम एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं। इसमें अच्छा, अब इनपुट को हमने जिस तरह मैंने आपके पास ऑर्डर नंबर जनरेट करके दिखाया आपको यहाँ पे, और पैरामीटर से उसको कैप्चर किया। अब इसमें मज़े की चीज़ ये है कि जितने भी आपका सी शार्प का कोड होता है उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं आप वो डायरेक्टली फील्ड्स के साथ बाइंड कर सकते हैं। जैसे आप रिएक्ट में स्टेट को बाइंड कर लेते हैं या एंगुलर में स्टेट को बाइंड कर लेते हैं, इसी तरह आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट सी शार्प की जो भी प्रॉपर्टीज़ है या क्लास का जो भी प्रॉपर्टी है उसको डायरेक्टली इसके साथ बाइंड कर सकते हैं। You have to simply use add bind। और अभी हम कुछ पैरामीटर नेम्स लिख लेते हैं जिसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। इसको हम रीड ऑनली कर देंगे। अच्छा, ये आपके पास साथ साथ रन करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया होता भी जाए कि इसका इफेक्ट कैसे आ रहा है। अभी रन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एरर है। उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली करेंगे कि हम जो भी हैं ऊपर जो यूटिलाइज किए हैं पैरामीटर्स उसको यहाँ पे डिफाइन कर लें। लाइक स्ट्रिंग्स कर लेते हैं सिंपल, num1 जैसे ही आपने ये क्रिएट किया यहाँ पे आपके पास इसका एरर खत्म हो गया और ये इसके साथ बाइंड हो गया। Similarly num2 and the output राइट। अब हमारे पास कोई एरर आना नहीं चाहिए रन करते वक्त। अच्छा, अब हमें ये क्या कह रहा है कि देयर इज नथिंग एट दिस एड्रेस, क्योंकि हमने क्या मिस किया है, हमने इसका कोई राउट क्रिएट नहीं किया। तो इसके लिए हम इस पेज को एक यूआरएल दे देते हैं, which is /calculator। अब हम कैलकुलेटर पे जाएंगे तो ये आपको एग्जैक्ट इस पेज पे नेविगेट कर देगा। यहाँ पे आप नंबर्स लिख सकते हैं, और ये थर्ड फील्ड मैंने रीड ओनली बनाई थी तो यू कैन नॉट राइट एनीथिंग इन दिस। इसका टाइटल चेंज कर लेंगे हम। अब हमें 3-4 बटन्स चाहिए जिसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर, लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई समथिंग। वापस ये बटन क्रिएट हो गया, जस्ट इसका टाइटल नहीं आया, तो उसको हम देख लेते हैं कि कैसे आएगा वो। अच्छा, इसको सेट कर लेते हैं हम, इसका कोई मसला नहीं है, हम 4 बटन्स पहले क्रिएट कर लें। और इन बटन्स के लिए ऑब्वियसली ऑपरेशंस भी हमें लिखने पड़ेंगे। तो अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हमें एक मेथड चाहिए जो कि हम इस कोड सेक्शन में क्रिएट कर सकते हैं सिंपली। अगर आपने कोई मेथड यहाँ पे क्रिएट करना हो तो फॉर एग्जांपल हम एक ऐड नंबर्स का मेथड क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए सिंपल आपको रन टाइप देनी है, ऐड नंबर उसका नाम रख लेते हैं, और इसमें
आपका आपके पास हमारे पास दो नंबर्स विद इन दिस ब्रैकेट जो है वो अवेलेबल हैं, यहाँ पे डिफाइन हुए हैं, और यही नंबर्स जो हैं आपकी इनपुट फील्ड्स के साथ बाइंड हैं। तो हमें यहाँ पे किसी भी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे ही आपकी इनपुट फील्ड अपडेट होगी, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट नंबर में कुछ भी एंटर करते हैं तो वो वैल्यू जो है वो इसके साथ बाइंड है, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। सिंपली आपने क्या करना है, उसको असाइन करना है आउटपुट को। और कैसे असाइन करना है, हम हमारे पास ये सिंपली स्ट्रिंग्स हैं, इसको इंटीजर कर लें तो शायद बेहतर हो जाए अगर कोई इशू ना आया। मैं तो हम सिंपली num1 प्लस num2 और इसमें that's it। अच्छा, अब इस मेथड को हमने ऑब्वियसली इन्वोक भी करना है कहीं ना कहीं से, तो ये इसको इन्वोक करने का जो तरीका है वो आपका सिंपली ये इसमें टाइप आई गेस नहीं होती, इनपुट टाइप बटन हम डायरेक्ट अगर बनाएं तो इट विल वर्क। अच्छा, जी आप इसमें बटन का HTML एलिमेंट यूज कर सकते हैं। इसकी इंटेलिजेंस थोड़ी सी वीक है, तो ऑब्वियसली आपको साथ साथ जो है कुछ ना कुछ गूगल भी करना पड़ सकता है। हम इसकी बूटस्ट्रैप क्लासेस भी साथ ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, अब ये इवेंट तो बन गया, लेकिन ये हिट कैसे होगा, इसके लिए सिंपली आप जो है ऑन क्लिक इवेंट कॉल करेंगे और इसमें आपके पास ये मेथड नेम आपने जस्ट देना है और ये आपके लिए इस मेथड को हिट कर देगा। अब हमने एरर तो कोई नहीं आया, ऐड नंबर हिट हो गया होगा मैं भी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये रिजल्ट यहाँ पे 2 शो हो गया। अब बाकियों के लिए कोई मेथड नहीं है हमारे पास, तो वो ऑब्वियसली बनाने पड़ेंगे हमें। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, लेकिन हम जल्दी से सिंपल मेथड्स हैं क्रिएट कर लेते हैं। अब इस पे मेथड्स अभी भी हिट नहीं हो रहे, लेट मी चेक व्हाट इज रॉन्ग। ओके, मेथड इसलिए हिट हो रहे क्योंकि हमने कॉपीज बनाई है और अभी उसमें कुछ चेंज नहीं किया। तो सबट्रैक्ट के लिए यू हैव टू डू माइनस मल्टीप्लाई। तो ये आपके इवेंट्स इस तरह हैंडल हो रहे हैं। हम इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर सकते थे एक बड़ी एप्लीकेशन बना के, ऑब्वियसली अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा होता। 1 hour is very less for Blazor. It at least requires a 24 hour training. तो इंशाल्लाह अगर आपको इसमें कुछ मज़ा आया हुआ और अगर कोई इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि हमने इसको बेसिक रखा है इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, अगर इसमें कुछ मज़ीद चाहिए हुआ तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मल्टीपल सेशंस क्रिएट करके हम इसकी डिटेल में भी जा सकते हैं। फर्दर ऑन आप इसमें जो चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये इसके अलावा एक कंप्लीट लिस्ट है जो आपको ब्लेजर प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके पास कंपोनेंट मॉडल बाइंडिंग है। आप डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, मल्टी लेवल कंपोनेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और कंपोनेंट्स बेसिकली जो आपके जितने भी पेजेस क्रिएट हो रहे हैं वो बेसिकली आपके कंपोनेंट्स हैं, और आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। देन देयर कम्स द राउटिंग। राउटिंग एक कंप्लीट सेपरेट चैप्टर है जिसके लिए सेपरेट टाइम चाहिए। राउटिंग में भी आप, अब हमने बिल्कुल बेसिक रखा है उसको,
पेज टू पेज नेविगेट करवाना या विद इन पेज नेविगेट करवाना, सिंपल इतना सामने स्टडी किया। लेकिन अगर आप राउटिंग की डिटेल्स में भी जाएं तो हमारे पास इसको मैनेज करने के, कम्प्लेक्स लेवल राउटिंग करने के बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके अंदर। देन देयर इज फॉर्म्स एंड वैलिडेशन, देन डिपेंडेंसी इंजेक्शन, देन जावास्क्रिप्ट इंटरऑप। जावास्क्रिप्ट इंटरऑप बेसिकली ब्लेजर जो है वो अभी हर चीज को सपोर्ट नहीं करता। लाइक बहुत सारी चीजें हैं, मीडिया रिलेटेड है। अभी कंजेक्टिवली ये ग्रोथ में ग्रोथ कर रहा है, इसमें काफी डेवलपमेंट हो रही है। .NET 6 में भी इसके काफी सारे लेटेस्ट फीचर्स आए हैं। तो अभी जिस जगह पे वो लैग कर रहा है वहां पे हम इसमें जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द ब्लेजर एंड द ब्राउजर। तो ये उसको भी सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है कि इसने कोई बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी या बिल्कुल ही साइड पे हो गया, अलग चीज है। आप स्टिल इसमें जावास्क्रिप्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं एज एन इंटरमीडिएट टू रिजॉल्व द इश्यूज जो आपको ब्लेजर सपोर्ट नहीं करता। फिर इसमें लाइव रीलोडिंग इन द ब्राउजर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जैसे अभी हमें बार बार जो है उसको रीलोड करना पड़ा था। तो ये इसमें आप लाइव रीलोडिंग कैसे कर सकते हैं वो भी ऑब्वियसली मैंने आपसे शेयर किया। एक हॉट रीलोड के नाम से .NET 6 में फीचर भी इंक्लूडेड है, तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा अदर मेथड्स भी अवेलेबल हैं, तो इसमें आप डिटेल में काफ़ी कुछ स्टडी कर सकते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिसको हम फ्यूचर में एक्सप्लोर कर सकते हैं और इस पे सेशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग 1 आवर में जितना पॉसिबल था वो मैंने ट्राई किया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कैरी ऑन। Yeah, we have a couple of questions. So, first is from Muhammad Hamid Mughal. The question is how the state management work between multiple pages. हाउ द स्टेट मैनेजमेंट वर्क्स। इसके लिए हमें जो है ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपसे बोला कि अभी मिसिंग है इसमें, जो हमने स्टडी नहीं किए। तो आप जो है बिटवीन डिफरेंट रेजर कंपोनेंट्स, आप डिफरेंट रेजर कंपोनेंट्स के दरमियान कॉलिंग कर सकते हैं और पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी राउटिंग में कि आप एक पैरामीटर अगर पास करना चाह रहे हैं, तो अगर मैं पैरामीटर जो है वो काउंटर कंपोनेंट को भी पास करना चाहता तो वो मैं कर सकता था। तो इसी तरह आप इसमें फर्दर आप राउटिंग को स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स पास करना है बिटवीन डिफरेंट पेजेस या डाटा पास करना है तो आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। Awesome. Thank you. And the other one is from Hamid again. How to compare Blazor with single page application? बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। जैसे मैंने शुरू में आई गेस आपको बताया भी है कि दिस इज अ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशंस। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है सिंगल पेज एप्लीकेशन वाला, जिसमें आपको जो है यूजर को इंटरेक्ट करवाना होता है ब्राउजर से। ठीक है, बेसिकली SPS का मकसद ये है कि यूजर जो है इंटरेक्ट करे और बार बार पेज रीलोडिंग ना हो। तो जैसे अभी आप देख लें इवेंट्स जो मैंने जितने भी हिट किए हैं वो सारे के सारे क्लाइंट साइड पे रन हो रहे थे, उसमें कहीं भी आपका पेज रीलोड नहीं हुआ। तो दिस इज सिमिलर टू सिंगल पेज एप्लीकेशन। Great. Thank you, Hamid, for asking good questions. And the other question is from me. In the start of our presentation, हमने देखा था कि Blazor के basically दो models होते हैं. One of them is server and the other one is the client model, which work on the WebAssembly. So server side पे यस। in the diagram it was mentioned कि ये basically client और server जो है ये signal R के through communicate करता है. So signal R हम खुद setup करेंगे या ये in the box ये जो Blazor है वो हमारे लिए automatically setup कर देता है and we don't need to do anything. नहीं, सिग्नल आर ये आपके लिए खुद ही सेटअप करेगा। इनफैक्ट आई वांटेड टू शो यू, लेकिन मैं मिस कर गया हूँ। सिंस वी हैव फ्यू मिनट्स तो मैं आपको दिखा देता हूँ। Sure. अच्छा, इसमें अब आप नेटवर्क टैब में जाएं तो just a minute। ये फर्स्ट कॉल जिसमें इसने सारा कुछ जो है जिसमें आपका CSS और जावास्क्रिप्ट जो भी है वो सारा कुछ इसने लोड कर लिया। अब आप फेच डाटा पे जाएं तो ये कोई सर्वर कॉल अभी नहीं कर रहा। अगर मैं रिफ्रेश करूं इसे तो ये आप देखेंगे यहाँ पे फेच डाटा की कॉल जिसमें आपका ये डाटा सर्वर से आ रहा है। इसी में अगर आप बैक पे सबसे नीचे चले जाएं, यहाँ एक आप
ये आपके पास वेब सॉकेट का कनेक्शन क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, नेगोशिएट। ये आपके पास वेब सॉकेट का कनेक्शन क्रिएट हुआ है और ये जो है आपका ब्लेजर आपके लिए खुद ही मैनेज कर रहा है। इसमें मजे की बात ये है कि आपको सिग्नल आर से कुछ लेना देना नहीं है, आपने कोई हब सेटअप नहीं करना, आपने कोई क्लाइंट साइड पे कोडिंग नहीं करनी, ठीक है। जस्ट आपने कॉल्स लिखनी है और ये सिंपली आपके लिए खुद ही उन कॉल्स को वेब सॉकेट के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करवा रहा है। लाइक सर्वर की और क्लाइंट की जितनी भी कम्युनिकेशन है वो वेब सॉकेट के थ्रू ये खुद मैनेज करता है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसका कोड में भी देखें तो इसका ये मैंने कोड स्ट्रक्चर बेसिकली स्टार्ट में इसलिए दिखाया था कि हमारे पास पेजेस में इसका कोई डिफरेंस नहीं है। आप सेम इसमें HTML, सेम राउटिंग, सेम HTML, सेम कोड सेक्शन, ये आप एज इट इज लिखेंगे। जब ये आप खुद जब इवेंट्स हिट करवाएगा तो ये खुद ही वेब सॉकेट का कनेक्शन क्रिएट करेगा और खुद ही ये आपके लिए सब कुछ मैनेज करेगा। Awesome. That's actually good कि developer को ज़्यादा work जी, architectural point of view से work करने की जरूरत नहीं है, and it's in the box. So it's good. Thank you. राइट राइट। अदरवाइज अगर किसी ने यहाँ पे सिग्नल आर यूज किया हुआ है तो ही नोज के हाउ मच देयर आर इश्यूज इन दैट, Effort कितना is मुश्किल होता required है and उसमें the डिफरेंट issues, हब्स yeah. को हैंडल करना। राइट राइट। Specifically on this सो stage कि हम multiple pages के साथ बात करें और every call works between client and server from the signal R. So it's good कि या उन्होंने ये in the box. Thank you. यस। Uh, that would be all. If you guys have any further questions, feel free to ask. We have a couple of minutes left. Otherwise, we'll wind up the session. I think there is no further questions. So thank you guys for joining. Thank you, Wasim, for giving us a great session on Blazor. And we'll have more sessions in upcoming weeks. And for now, we have a big announcement. There is a .NET conference coming up on November 27, which will start at 12 p.m. In the afternoon, on the noon. So you just go to codemovement.pk. वहाँ पे आप लोग register कर सकते हैं. It's free for everyone, and we have multiple international speakers as well. So it is gonna be a great conference for everyone. So go now to codemovement.pk, register yourself, and we look forward to see you in the conference. Thank you guys, and have a good day.